Good morning and good afternoon, everyone. My name is Dr. Rajay Narain. I am a cardiologist at St. George's University Hospital in London, and I'm also the director for Global Health Alliance. And today we have gathered together to discuss a very important health crisis that all of us are facing at the moment. We know that India is going through one of the most difficult times, and to deal with this difficult crisis, we've got some of the leading experts from the UK because UK has already gone through the second wave, and we have dealt with lots of difficult cases with COVID in their second wave. And unfortunately, India is seeing the same thing, although the situation is quite bad in India, as we know. But most important, as we wanted to do something so that there is better knowledge and understanding of the drugs, especially, and the management of COVID that is happening at home. People do it rightly. And that is why Global Health Alliance is trying to set up lots of initiatives to support fellow citizens in India. And as part of that, we have set up a regular teleconsultation at Delhi in our office. I'll quickly share the screen and show you the picture of and the number, give you the number of our helpline. That is the number. Can you see my screen? Manish, can you see my screen? I think it's blank, Rajay. Okay. So we'll share this. We'll share the number at the end. Maybe we'll just leave it for the moment. So Yeah, we can see now. It did come up. Yeah, that's fine. So we've got Dr. Manish Gautam, who's the Deputy Medical Director and lead in respiratory and critical care medicine at Royal Liverpool Hospital. Manish has seen lots of all these critical patients while he was facing the second wave of COVID. We've got Dr. Anurodh Bhawnani, who's again a very famous and a lead anesthetist and critical care expert at Liverpool Heart and Chest Hospital. And again, he has dealt with lots of critical unwell patients with COVID. The whole idea for this webinar today is to try and get as much understanding as possible, especially when it comes to dealing with difficult patients of COVID at home. So I would like to just maybe start with Manish, you, and just discuss some basic case scenarios, because again, when it comes to people sending me WhatsApp messages from India, I come across lots of prescriptions of doctors from India where they are being prescribed azithromycin, ivermectin, Fabiflu, methylprednisolone, dexamethasone in the very first few days of the illness. And we know that many of the patients that we have dealt, about 95% of the patients with COVID that we have dealt in the UK, we never even ask these patients to come to the hospital or go for any blood test or a CT scan or get their IL-6 or CRP measured. So just if you could run us through a very basic scenario. So suppose I have now been diagnosed or I'm suspected to have COVID because I've got some mild cough, cold in the last few days. What should be my strategy? What should I be doing? And again, I would request you to just maybe tell us something in English and Hindi as well, because we've got some Hindi listening audience as well. So it will be great if you can do both English and Hindi together, Manish. Thank you so much. Thanks, Rajay. Thank you for all these initiatives and the hard work you are putting in at the time of crisis in India. It's actually really sad the way numbers have increased, and so many close sort of friends, family members, pretty much the whole India is struggling one way or the other and feeling direct and indirect impact of the disease. So it's sad, but again, we all have to step up. For us, it's like any other challenge we are facing, and we'll get through this challenge as well. So it's very common, Rajay, what you said. I'm getting these messages sort of pretty much every day where there's a state of panic in the family members, relatives. They are not able to access medical help in a structured way. Some doctors are refusing to see the patients. Some doctors are giving sort of half opinion without any evidence base, and throwing all these medications or weapons we have without considering the guideline and the evidence base for COVID-19 management, and which is biggest challenge for all of us. मैं एग्जांपल देता हूँ. अभी GHA के charity clinic में teleconsultation में somebody rings me from Chennai. 3 patient हैं घर में, 25-year-old, 27, 28, asymptomatic, कोई symptom नहीं है, तीनों hospital में admit हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन पे है,
उनका लाखों का बिल चल रहा है, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है उनको हॉस्पिटल में, स्टेट ऑफ पैनिक है फैमिली में। तो ये काफ़ी कॉमन सिचुएशन है। वी डिडंट सी दिस इन फर्स्ट वेव इन इंडिया बिकॉज वेरी क्लेवर क्लिनिशियन, बहुत क्लेवर कॉलीग्स हैं इंडिया में, अमेजिंग साइंटिस्ट हैं, पर ये बिकॉज ऑफ स्टेट ऑफ पैनिक लोग बेसिक्स से डिविएट हो रहे हैं, बेसिक्स भूल रहे हैं। कोविड की मैनेजमेंट में लेस इज मोर, बिकॉज एविडेंस इज ओनली फॉर लेस। एविडेंस जो है वो बहुत कम चीज़ों का है, और अगर हम ये सारी मेडिकेशंस डे वन पे दे रहे हैं तो वो डैमेज कर रहा है पेशेंट्स को, दैट इज एक्चुअली किलिंग लॉट्स ऑफ पेशेंट्स। सो एग्जाम्पल आपने दिया है, पहले दिन किसी को आपने स्टेरॉयड पे लगा दिया, हाई एंटीबायोटिक लगा दी 2-3 टाइप की, आइवरमेक्टिन है, फेबिफ्लू है, सब पहले दिन पे डाल देंगे आप, उसकी बॉडी को हील करने का टाइम तो दे ही ना रहे। इम्यून सिस्टम को आपने पहले ही क्रैश कर दिया है स्टेरॉइड्स पे। सो इट इज एक्चुअली कॉजिंग damage to that patient. So timing of management is very very important, और हमारे colleagues को पता है, बट ये पैनिक की वजह से लोग वो भूल रहे हैं। माइल्ड डिजीज होता है, एक मॉडरेट डिजीज होता है, और एक सिवियर डिजीज होता है। इसीलिए टाइमिंग ऑफ दीज मेडिकेशंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन। सेकेंडली, जो इतनी सारी मेडिकेशन वर्ल्ड में हर किसी को अब नाम पता है, उनमें से 2 या 3 का ही सिर्फ एविडेंस है। एंटीबायोटिक्स प्लस माइनस का एविडेंस है, डेक्सामेथासोन स्टेरॉइड का एविडेंस है, और उसके अलावा हर चीज का एविडेंस बहुत लिमिटेड है, और मेजॉरिटी ऑफ ये मेडिकेशंस हैं उनका तो एविडेंस है ही नहीं है। बट वो पैनिक की स्टेट में सारे मरीज को दिए जाते हैं, मरीज उससे उस स्टेट में पहुंच जाता है 4 या 5 दिन में, जब उसको ठीक होना स्टार्ट होता है कि मैं तो मरने वाला हूँ, सारा ट्रीटमेंट मेरे को मिल चुका है। फैमिली में पैनिक आता है, और एक्सप्लॉयटेशन भी हो रही है कुछ डिग्री से। मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया इंडियन हेल्थ सिस्टम को, बट द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव फेल्ट पीपल आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड इन सम प्लेसेस, क्योंकि वहां पे उनका लाखों का बिल चल रहा है। उन पेशेंट्स को हॉस्पिटल में होने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे पेशेंट घर में बैठे हुए हैं जिनको हॉस्पिटल में होना चाहिए, उनको रिजेक्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल वाले, बिकॉज इट लुक बैड ऑन देयर नंबर्स, और वो इजी पेशेंट्स ले रहे हैं। उन इजी पेशेंट्स को उठा के एंटीबायोटिक, रेमडेसिविर और ये सीटी स्कैन हर चौथे दिन करवा के लाखों का बिल आ रहा है, और वो अपने नंबर्स अच्छे बना रहे हैं, हाँ पेशेंट बेटर हो रहे हैं। तो ये सैड सिचुएशन है। तो मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट है पेशेंट से, रिलेटिव से, डॉक्टर्स जो हैं हमारे कॉलीग्स हैं, कि जस्ट गो बैक टू बेसिक, जो हमने पहले किया है फर्स्ट वेव में। इंडिया ने अमेजिंग मैनेजमेंट की है कोविड की, क्योंकि वी वर डूइंग बेसिक थिंग्स। अर्ली लॉकडाउन था, प्रिकॉशंस थे, और गाइडलाइन पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे लोग। जब भी आपातकाल आता है, आपातकाल में पैनिक होता है, बौखला जाते हैं लोग, और उसमें बहुत जरूरी है एक सिंपल गाइडलाइन पॉलिसी फॉलो करें लोग। हर आदमी अपनी तरीके से करने लगेगा तो इट क्रिएट्स ए स्टेट ऑफ एनार्की। सो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिजीज का कॉलम याद रखें, क्लिनिशियंस के पास जाएं उसके अकॉर्डिंग, और उनसे क्वेश्चंस पूछें कि क्या मैं ट्रीटमेंट जल्दी ले रहा हूं, लेट ले रहा हूं, क्या मेरे को एक्चुअली चाहिए अभी। और सिमिलरली क्लिनिशियंस को भी ऐसे ही करना चाहिए। बहुत ही अच्छा बात आपने बताया मनीष, कि जैसा आपने बताया कि पैनिक का एक माहौल बना हुआ है पूरे भारत में। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फर्दर ये बताना चाहूँगा, जैसा हम लोग सब डिस्कस कर रहे हैं, कि जब नॉर्मल पहला 2, 3, 4 दिन है, जब आपको माइल्ड सिम्टम्स है, हल्की सर्दी है, हल्की खांसी है, हल्की बुखार है, तो इसको नॉर्मल वायरल फ्लू की तरह ट्रीट करें। जबकि नॉर्मल सिर्फ पैरासीटामोल लें, थोड़ा गार्गल कर लें, थोड़ा मल्टीविटामिन अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो दैट इज हाउ यू शुड बी ट्रीटिंग। पहला 2-3 दिन सिर्फ नॉर्मल पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, थोड़ा विटामिन सी लेके अपना जैसे फ्लू को मैनेज करते हैं वैसे मैनेज करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि अब अगर हमारा 2-3-4 दिन, 5 दिन ऐसा गुजर चुका है, जबकि हमारे सिम्टम्स जो हैं वो काइंड ऑफ स्टेबल हैं, तो पैनिक बटन जो होता है, जो कि लोग पैनिक करते हैं, जो कि सब तरफ से लोग अपने किसी एक डॉक्टर से, फिर दूसरे डॉक्टर से, फिर तीसरे डॉक्टर से कर रहे हैं, और वो कुछ बोल रहा है 4 दवा आप ले लो, 3 दवा वो बता रहा है, एक को एजिथ्रोमाइसिन बता रहा है, कोई डॉक्सीसाइक्लिन बता रहा है, कोई बता रहा है मिथाइलप्रेडनिसोलोन शुरू कर दो। तो अनुरोध, आपसे जानना चाहेंगे नेक्स्ट की एक इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि सबसे जरूरी हमारे लिए जानना है, कि स्टेरॉइड लोगों को घर में कब शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हम लोग एंटीबायोटिक्स पर और बेसिक पे फिर से मनीष से बात करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे ज्यादा हम लोग के पास आया है, कि स्टेरॉइड जो होता है, चाहे वो मिथाइलप्रेडनिसोलोन हो, चाहे वो मेड्रोल हो, चाहे वो डेक्सोना हो, चाहे वो वाइसोलोन हो, जो भी स्टेरॉइड हो, स्टेरॉइड के लिए ट्रिगर कब होता है, कब हमको सोचना चाहिए कि अब मेरा टाइम आ गया कि मेरे को स्टेरॉइड शुरू करना चाहिए? Okay. So
Thank you, first of all, Dr. Rajay, for inviting. And जैसा Dr. Manish ने बोला कि timing is very important. So again, timing for steroids. There is enough to show कि steroids are helpful. लेकिन helpful in moderate disease. मतलब कहने का मतलब कि now that brings us to the basic question, definition क्या है? Mild, moderate, severe की definition क्या है? Now simple सा तरीका है define करने का इसको. इफ यू हैव गॉट माइल्ड डिजीज मतलब थोड़ा सर्दी जुकाम थोड़ा खांसी ये सब होगा बुखार होगा लेकिन आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है आप सैचुरेशन सबके पास पल्स ऑक्सीमीटर आजकल आपका सैचुरेशन यदि फाइन है तो आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है तो दैट इज माइल्ड डिजीज व्हेन यू नीड ऑक्सीजन थेरेपी मतलब इंग्लैंड में या कहीं पे भी इसके लिए तो हॉस्पिटल में आना पड़ता है लेकिन आई नो फैमिलीज एंड थ्रू एनफ कि इंडिया में ऑक्सीजन लोग घर पे ले रहे हैं So if you are needing oxygen therapy at some point, that is defined as moderate disease. That is the time of giving steroids. There is enough. There was a big trial done, REMCAP, which we were having a talk about. सुबह को जो बात कर रहे थे उसके बारे में REMCAP trial, which is a multi-center international countries. बहुत सारी countries have been involved in this. More than 10 to 15,000 patients were involved. 3 drugs were looked at: antiviral, remdesivir, interleukin IL-6 antibody receptor antagonist, tocilizumab and sevelimab, and steroids. And the evidence was steroid has a role. Steroid prevents death, mortality. The outcome is much better यदि आप steroid की timing सही लें, dexamethasone, methylprednisolone. The जो उसका study थी that was on dexamethasone. Patients जो ऑक्सीजन थेरेपी पे है उनके लिए डेक्सामेथासोन 8 मिलीग्राम once a day for 10 days is supposed to be helpful. तो अनुरोध मैं बस यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा कि मैं घर पर हूँ, मैं अपना फीवर मॉनिटर कर रहा हूँ, अपना सैचुरेशन मॉनिटर कर रहा हूँ. किस सैचुरेशन पे, और मनीष मैं आपसे भी इस पर बात करना चाहूंगा कि किस सैचुरेशन पे हमको लगता है कि हाँ अब मेरा टाइम आ गया है कि हमको डेक्सामेथासोन चाहे मिथाइलप्रेडनिसोलोन जो भी हम शुरू करना चाहते हैं हमारे लोकल. मैं एक बात सबको ये जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो वेबिनार है, ये जो डिस्कशन है, ये गाइडेंस के लिए है. सबसे जरूरी है कि आप अपने लोकल डॉक्टर से मशवरा करें, अपने लोकल डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनका बात माने. लेकिन ये एक तरह का एक एक्सपर्टीज है जो कि डॉक्टर भवनानी ने और डॉक्टर गौतम ने और हमने देखा है इंग्लैंड में सेकंड वेव में कि कैसे हमने मैनेज किया मोस्ट ऑफ द केसेस को. उसके एक एक्सपीरियंस हम लोग यहाँ शेयर करें. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप 100% हम लोग की बात माने. आप डेफिनेटली अपने लोकल डॉक्टर्स के सलाह मशवरा करें और उनसे उनकी बात माने. लेकिन अनुरोध आप एक नंबर बताएं, एक कि या एक ट्रेंड बताएं कि कब मेरे को पता चलता है कि मैं 3-4 दिन मान लीजिए मैं हल्की फीवर में रहूं, हल्की सर्दी रहा, मैं पैरासिटामोल लेके अपना काम चला रहा हूं, क्या ट्रिगर करेगा कि मेरे को पता है कि हाँ स्टेरॉइड लेने का समय आ गया. Again, as we were discussing in the सुबह को जैसे हमारी बात हो रही थी, तो more than any number, I mean we have to go by some number, लेकिन more than any number, it is the trend. A falling trend is worrying. For example, यदि आपका you are a fit, healthy man, woman, आपका saturation fine रहता है 97, 90. I'm giving a scenario जब fit and well है, COPD, asthma इन patients की बात नहीं हो रही, we'll come to that. यदि आपका saturation 97, 98 रहता है, and it is like that with fever and things, ज़्यादा गिर नहीं रहा है, तो it is fine. But say it starts dropping, day 2, day 3 पे 94, 95 आ गया, उसके बाद 92, 93 आ गया, that is worrying. If you have to go by a number, yes, less than 93%, less than 92 to 94, pick up the mean, 93. 93 is a number to go by, 92 to 93%. If it is less than that, on room air, that is the time, and this comes from the basic physiology. Oxygen hemoglobin dissociation curve की जो physiology होती है, उससे less saturation में क्या होता है कि oxygen बहुत जल्दी dissociate कर जाएगा blood cell से, और आपके oxygen levels नीचे चले जाएंगे. तो the number to go by is 92 to 93%. Another said पहले trend is important. इससे नीचे जाए 92 तो yes, oxygen therapy goes hand in hand with steroids. थैंक यू वेरी मच अनुरोध. तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि शुरू के 3-4-5 दिन में जबकि कोविड पीक पे नहीं होता है, कोविड खराब नहीं होता है, सिर्फ आपको हल्की फीवर है, हल्की बुखार है, हल्की ठंड है, हल्की खांसी है और सैचुरेशन आपका अगर नॉर्मल है तो स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं होता है. आप अपना एम्स का भी गाइडलाइंस देखें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी गाइडलाइंस देखें, उन्होंने भी यही बात साफ किया है कि पहले 5 से 7 दिन में स्टेरॉइड, अगर आपका सब चीज स्टेबल है तो स्टेरॉइड नहीं लेना है.
मनीष, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि फिर वही प्रिस्क्रिप्शन की बात है कि लोग जब जाते हैं कोविड का टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट करते हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है और उसके बाद लोग शुरू करते हैं कि भाई पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम का एकदम एब्सोल्युटली इज द राइट थिंग टू डू, और खाना भी चाहिए पैरासीटामोल बुखार को कम करने के लिए। विटामिन सी जरूर खानी चाहिए। जिंक और विटामिन डी का भी कुछ कुछ स्टडीज में देखा गया है कि रोल होता है, तो जिंक और विटामिन डी खाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये विटामिन खा सकते हैं, पैरासीटामोल खा सकते हैं। अब आइवरमेक्टिन एक दवा है जो कि सबको प्रिस्क्राइब किया जा रहा है। पूरे इंडिया में एक फिक्स प्रिस्क्रिप्शन है कि सबको आइवरमेक्टिन दिया जा रहा है। तो आप ये बताएं कि क्या जरूरी है कि मैं अगर नॉर्मल हूं और अगर स्टेबल हूं तो मैं आइवरमेक्टिन शुरू कर दूं पहले दूसरे तीसरे दिन से? थैंक्स राजे। नहीं, बिल्कुल जो अनुरोध ने भी बोला है अभी, अपने बॉडी को टाइम देना है हील करने के लिए डिजीज को। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू हैव माइल्ड डिजीज, जो इसमें हल्का फीवर है, हल्की सूखी खांसी हो सकती है, दे आर फीलिंग ओके अदरवाइज। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गुड हाइड्रेशन, गुड बेड रेस्ट, रेगुलर पैरासीटामोल। अगर थोड़ी बहुत बलगम आने लगे, स्पीटम है, तो अपनी एंटीबायोटिक स्टार्ट किया जा सकता है। सो ये माइल्ड डिजीज है, मेजोरिटी लोगों को ये डिजीज होगा, वहां पे पेशेंस रखें, बॉडी उसको हील करेगी। याद रखने की बात है, जब स्टेरॉयड आते हैं, स्टेरॉयड का काम है सूजन कम करना, इन्फ्लेमेशन, और वो हाई पीक पे जब आती है इन्फ्लेमेशन, वो आएगी 5 दिन के बाद। उससे पहले अगर आप स्टेरॉयड दोगे तो बॉडी के इम्यून सिस्टम को आप कम कर रहे हो, बॉडी फाइट ही नहीं कर पाएगी इन्फेक्शन को। जो वायरस रेप्लिकेट, उसको बल्कि स्पीड ज्यादा कर देती है वो जल्दी स्टेरॉयड देने के लिए। तो फर्स्ट 5 डेज यू हैव टू डू बेसिक, जैसे किसी फ्लू में कोल्ड में करते हो। उसके बाद एवरी पेशेंट इज डिफरेंट। अगर उन पेशेंट को लगता है ब्रेथलेसनेस हो रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है 93%, तो उस टाइम पे स्टेरॉयड हमें थ्रो करना है। वो है सूजन को कम करने के लिए, जो सीटी में चेंजेस आ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन दिखती है। तो अगर ये प्रोटोकॉल चलता है तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट विल गेट बेटर। जो हम आपने कहा राजेश, शुरू में आइवरमेक्टिन देना है और दूसरी मेडिकेशन का कोई एविडेंस नहीं है आइवरमेक्टिन का। ये काफी मैं एक और मेडिसिन के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि आइवरमेक्टिन की बात हो रही है, कि मैं एक जो अदर मेडिसिन जो कि काफी फ्रीक्वेंटली प्रिस्क्राइब हो रहा है, फैबीफ्लू और आइवरमेक्टिन सबको दिया जा रहा है। तो आप जैसा जानते हैं कि हमने इंग्लैंड में एक आदमी को, जो लोग घर में अपना इलाज कर रहे हैं, जो कि माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज है, जो कि घर में अपना पैरासीटामोल, हाइड्रेशन, विटामिन लेके ठीक हो जाते हैं 90% ऑफ द पेशेंट्स, किसी को आइवरमेक्टिन नहीं दिया गया, किसी को फैबीफ्लू नहीं दिया गया, एंड दे ऑल मेड 100% रिकवरी। तो ये बहुत ही अपने बहुत बड़ा रिसर्च है। आई नो यार, ये चैलेंज यही है राजेश टाइम की, क्योंकि पैनिक की वजह से, और पैनिक नेचुरल है होना, पैनिक जिस तरह से डिजीज स्प्रेड करता है। अगर एक सिंगल पॉलिसी पाथवे नहीं है डॉक्टर्स के लिए, पेशेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, कि हाँ ये है, इसको हमें फॉलो करना है, उस स्टेज में अगर आदमी अपनी मर्जी से जो कुछ करने लगा है, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। कोई आएगा, नहीं जी हमें तो आइवरमेक्टिन देनी है, दूसरा कहेगा नहीं नहीं मेरे को ये भी देनी है, मैंने तो इस पे मेरा एविडेंस देखा है। मोस्ट ऑफ दी स्टडीज ऑफ आइवरमेक्टिन, फैबीफ्लू, छोटी छोटी स्टडीज हैं। तो इस तरह से कोई एविडेंस नहीं है इनका कि इंडिया जैसे बड़े कंट्री या पूरे वर्ल्ड के लिए उसको रेकमेंड कर सके हम। और खासकर इस सिचुएशन में तो बिल्कुल ही ऐसे नहीं करना चाहिए। इस सिचुएशन में तो लेस इज मोर, बिकॉज वी कैन फॉलो दैट एंड दैट विल बी क्लियर गाइडेंस फॉर एवरीवन। सो इन दो मेडिकेशंस को डेफिनेटली कोई इंडिया में आज की डेट में इनको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू स्टिक विद यूनिफाइड पाथवेज टू मेक मेजॉरिटी ऑफ पीपल बेटर। एब्सोल्युटली। तो हम जहां तक कभी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर पहला 3-4 दिन 5 दिन हल्की बुखार है, सर्दी खांसी है, तो अपना नॉर्मल पैरासीटामोल, एंटी एलर्जिक, कुछ विटामिन लें, कुछ गार्गल करें, कुछ स्टीम लें, उससे अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। और ऑब्वियसली अपने सैचुरेशन पर नजर रखें। सैचुरेशन, जैसे डॉक्टर भवनानी बताया कि अगर सैचुरेशन आपका कम रहा है, एक ट्रेंड है कि नीचे नॉर्मल आपका बेसलाइन 95-96 रहता है, और अगर आपका ट्रेंड रह रहा है कि 92-93 की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा अलर्टनेस की जरूरत है, थोड़ा सा शायद स्टेरॉइड शुरू करने की जरूरत है। अपने डॉक्टर से बात करें और कोशिश करें कि ऑक्सीजन का इंतजाम करें, क्योंकि ऑक्सीजन की आपको जरूरत पड़ेगी। नॉट नेसेसरली कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़े, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल में जाके इलाज कराना, चूंकि हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में जाने के बाद कुछ और दवा देनी पड़ी। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं मनीष आपसे पूछना चाहूंगा, कि लोग हड़बड़ा के सिटी स्कैन करा रहे हैं, तुरंत में IL-6 करा रहे हैं, प्रोकैल्सिटोनिन करा रहे हैं, फेरेटीन करा रहे हैं, LDH करा रहे हैं। तो आप भी जानते हैं, अनुरोध भी जानते हैं कि हम लोगों ने जितने भी पेशेंट्स हमारे
घर में रह के अपने आप का इलाज करा के अपने ठीक हुए हैं, किसी का भी आज तक 100% लोग जो कि घर बने, किसी का भी ना हमने सीआरपी कराया, ना एलडीएच कराया, ना प्रोकैल्सिटोनिन कराया, ना डी डाइमर कराया, और सब ने 100% रिकवरी किया। तो ये कितनी जरूरी बात है समझना लोगों के कि हड़बड़ा के जो, और डॉक्टर गुलेरिया, रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसी बात को एम्फोसाइज करने के लिए कि आप रोज रोज अपना डी डाइमर नहीं कराएं, रोज रोज हर 3 दिन पे 4 दिन पे सीटी स्कैन नहीं कराएं। तो आप बताएं मनीष की सीटी स्कैन कब कराना चाहिए, और अनुरोध मैं आपके डी डाइमर पे क्वेश्चन पे आपको आऊंगा, पहले मनीष आप बता दें कि सीटी स्कैन का टाइमिंग क्या होना चाहिए। राजे बिल्कुल एग्जैक्टली यही हो रहा है। फर्स्ट डे पे सारी इन्वेस्टिगेशन, आई मीन कैन यू इमेजिन किसी पेशेंट जो कोविड डिजीज से लड़ रहा है उसका कोलेस्ट्रॉल चेक करने का क्या लॉजिक है? घर में बैठा है, उसको कोई सिम्टम ही नहीं है, माइल्ड फीवर, उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट हो रहे हैं उसके डेली के, सीटी स्कैन हो रहा है डे 1 में, पेशेंट को भी सिम्टम ही स्टार्ट नहीं हुआ, डे 1 में स्कैन हो रहा है। इट इज कंप्लीटली रॉन्ग। दे आर एक्चुअली एक्सपोजिंग पीपल टू अननेसेसरी रेडिएशंस, और उसमें रेडियोलॉजिस्ट का फॉल्ट नहीं है। इफ ए क्लिनिशियन इज एक्चुअली सेइंग हमें पहले दिन सीटी करना है, तो रेडियोलॉजिस्ट कैन ओनली क्वेश्चन, उनका तो काम, दे विल सपोर्ट ए क्लिनिशियन। सो क्लिनिशियंस को नीड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, आई विल रिक्वेस्ट देम, एंड पेशेंट्स एंड फैमिलीज को एक क्वेश्चन करना चाहिए, मैं तो ठीक फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, मेरी इन्वेस्टिगेशन क्यों इतनी की जा रही है अभी? तो this is so important and so wrong. In mild disease we need to let body to recover, we don't need any of that. बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात है ये समझने की कि आप समझें कि अगर आप अननेसेसरी 2-3 सीटी स्कैन करा लेते हैं अपने कोविड पीरियड के समय, एक सीटी स्कैन 300 से 400 एक्सरे के बराबर एक्सरे का एक्सपोजर कर देता है। एक सीटी स्कैन 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के करीब एक्सपोजर देता है, और अगर आप 3-4 सीटी कराते हैं अपने इलनेस में, देन यू हैव पुट योर बॉडी एट प्रोन टू सम कैंसर्स इन फ्यूचर, व्हिच इज वेरी वेरी हाई रिस्क। तो इसलिए सीटी स्कैन तभी कराएं जबकि आपका सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है 92 से नीचे, आपका फीवर बहुत हाई रह रहा है, और आपके डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करा के देखा है कि सीआरपी आपका काफी हाई है, तब ऑब्वियसली सीटी स्कैन करके देखना जरूरी है कि कहीं आपकी निमोनिया बढ़ तो नहीं रही है, आपको एजिथ्रोमाइसिन शुरू करने की जरूरत तो नहीं है। अनुरोध मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लोग डी डाइमर कर रहे हैं, प्रोकैल्सिटोनिन कर रहे हैं, ये इस तरह का टेस्ट नॉर्मली आप लोग अपने पेशेंट में करते हैं। जब पेशेंट जनरल वार्ड से आईसीयू में पहुंचता है तब हम लोग डी डाइमर, प्रोकैल्सिटोनिन, एलडीएच, फेरिटिन लेवल देखते हैं कि भाई ये कितना स्टेबल पेशेंट है, कैसे इसका वेंटिलेशन मैनेज करेंगे, एंड दैट इज द राइट स्टेज। ऑब्वियसली जहां तक मैं एक और बात अभी बताना चाहूंगा कि लोग हड़बड़ा के एस्प्रिन ले रहे हैं, लोग हड़बड़ा के डॉक्साबैन ले रहे हैं, एपिक्साबैन ले रहे हैं, रिवरोक्साबैन ले रहे हैं टू प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। मैं यहाँ पर अभी ये बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारी अभी आज सुबह डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं जो कि फोर्टिस के कार्डियोलॉजी के डायरेक्टर हैं, और हमारे और भी जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अजय सिन्हा पारस के कार्डियोलॉजी के हेड हैं, उनसे सबसे हमारी बात हुई है, और उनका भी ये मानना है कि अननेसेसरली एस्प्रिन, अननेसेसरी फोर्टे जो ले रहे हैं, डॉक्साबैन चाहे एपिक्साबैन चाहे रिवरोक्साबैन, ब्लड थिनर्स जो प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं लेफ्ट राइट एंड सेंटर्स लोगों को, वो नहीं लेना चाहिए। तो अनुरोध आपसे बात जानना चाहूंगा कि डी डाइमर के बारे में आपका क्या कहना है? लोग जो डी डाइमर करा रहे हैं और हड़बड़ा के एस्प्रिन शुरू कर दे रहे हैं कम्युनिटी में, हमने तो किसी को एस्प्रिन नहीं दिया इंग्लैंड में, जो भी लोग हम लोग के घर पे ट्रीट हो रहे थे किसी को एस्प्रिन नहीं मिला, किसी का डी डाइमर चेक नहीं हो, तो कब ये करना चाहिए? यस, तो डी डाइमर का देखिए अब रोल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल डी डाइमर, ये तो पता है देयर इज एनफ टू शो कि कोविड-19 इज अ प्रोथ्रोम्बोटिक स्टेट। मतलब कहने का मतलब कि इसमें क्लॉट्स बनते हैं, एंड ये हमने फर्स्ट वेव में देखा, यहाँ पे भी, इंडिया में भी, इंटरनेशनली सब जगह देखा। पेशेंट्स हु आर इल, जो कहने का मतलब जो इंटेंसिव केयर में, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन थेरेपी पे है, उनमें क्लॉट फॉर्मेशन काफी होता है। लंग में क्लॉट, पैरों में क्लॉट, स्पेशली पीई, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जिसको कहते हैं, ये हमने फर्स्ट वेव में देखा। इसके बहुत सारे रीजंस है, बिकॉज इट्स अ सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम, एआरडीएस हो रहा है, प्रोकोगुलेंट स्टेट हो जाता है, एंड उसके चलते क्लॉट्स बनते हैं, ये पता है। डी डाइमर एक टेस्ट है जिससे पता चलता है प्रोपेंसिटी कितनी है आपकी क्लॉट बनने की। लाइक एनी अदर थिंग, एक टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, इट्स अ ट्रेंड, कि वो राइजिंग ट्रेंड है, फॉलिंग ट्रेंड है। यस, इट विल गिव यू एन इंडिकेशन, लेकिन बाय वन नंबर डजंट मीन एनीथिंग। नाउ कमिंग बैक टू कि अब टेस्ट कब कराना चाहिए, तो इन एन आइडियल सिचुएशन
तो जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो यस एक बेसलाइन होना चाहिए। टेस्ट तब होता है ताकि उसका बेसलाइन किया जाए, तब हम लोग फॉलो कर सकते हैं उसको कि व्हेन थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, मतलब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज्यादा हो गई है, पेशेंट इज लुकिंग अनवेल, तब फिर आप रिपीट करें और डी डायमर बढ़ा तो यस इट गोज विद दैट कि हाँ दिस पेशेंट इज नॉट लुकिंग वेल, एंड दैट इज द टाइम टू स्टार्ट ऑन सम एंटीकोगुलेशन, ब्लड थिनर जिसको कहते हैं, which can be anything. क्लेक्सेन हो सकता है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन हो सकता है, नोवल एंटीकोगुलेशन हो सकते हैं, अपिक्साबैन। दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग। ये भी हमने फर्स्ट वेव में और सेकंड वेव में देखा यहाँ पे कि व्हेन पीपल, हम लोगों ने पहली वेव में तो सबको ट्रीटमेंट डोज एंटीकोगुलेशन स्टार्ट कर दी, एंड देयर इज गाइडलाइंस टू शो इन फैक्ट कि पेशेंट्स वर डाइंग बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम ब्लड थिनर्स, उनमें ब्लीडिंग से डेथ हो रही थी। Then second wave में we had revised guidelines, and this was internationally, केवल यूके की बात नहीं है, there was international guidelines कि सबको ट्रीटमेंट डोज ब्लड थिनर्स देने की जरूरत नहीं है। उन पेशेंट्स में जिनके डी डायमर कंसिस्टेंटली राइज कर रहे हैं, उन पेशेंट्स में जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जो इंटेंसिव केयर में, यस उनमें मॉडरेट डोज ऑफ एंटीकोगुलेशन, सो इंटरमीडिएट डोज। आई कैन गिव यू एग्जांपल फॉर आवर हॉस्पिटल, आई कैन टेल यू वी गिव 0.6 milligram per kg of low molecular weight heparin Clexane, या पेशेंट जब when is going home then we convert them into apixaban, या उस टाइम पे मतलब ऑक्सीजन थेरेपी एंड नॉट लुकिंग वेल विद स्टेरॉइड एंटीकोगुलेशन की जरूरत है, बट नॉट फुल डोज एंटीकोगुलेशन। प्रोफाइलैक्टिक जो करते हैं, तो ये तो यस बात हो गई कि जब पेशेंट हॉस्पिटल आते हैं और उनका हम लोग जो चूंकि डेटा है, एविडेंस है, रिसर्च है कि जब आप एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में तो वर्ल्ड वाइड ये है एविडेंस है कि यू आर एट रिस्क ऑफ हैविंग अ स्मॉल क्लॉट, इसलिए आपको एक प्रोफाइलैक्टिक डेल्टापैरिन या क्लेक्सिन या जो भी देते हैं तो दैट इज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड यस प्रोटोकॉल। लेकिन जहां तक मैं हॉस्पिटल के पहले, मैं अगर घर पर हूं पहला 5 7 8 10 दिन जबकि मैं स्टेबल हूं, तब अभी तक कोई नहीं ऐसा रिसर्च नहीं आया नो है कि एंटीकोगुलेंट्स लाइक एस्पिरिन नहीं या एंटीप्लेटलेट लाइक एस्पिरिन या एंटीकोगुलेंट्स लाइक एपिक्साबैन, एलिक्विस, रिवरोक्साबैन। मनीष, ये एक इम्पोर्टेंट, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि चूंकि यहाँ पर लोग पैनिक करके सबको एंटीकोगुलेंट्स दे रहे हैं, एंटीप्लेटलेट्स दे रहे हैं, खास करके हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप एस्पिरिन पे पहले से नहीं है तो आप एस्पिरिन लेना शुरू कर दें, जो कि आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचा लेगा। ये मैं बात मानता हूं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट कि अगर आप एस्पिरिन पे ऑलरेडी हैं बिकॉज आपको पहले से कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है, पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, तो यस एस्पिरिन कैरी ऑन करें, जरूर रखें, चलते रहने दें एस्पिरिन। लेकिन अगर आपका एस्पिरिन नहीं चल रहा है तो यू शुड नॉट स्टार्ट एस्पिरिन। बिल्कुल राजन, एंड ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अभी अनिरुद्ध ने यही बोला है कि जब ट्रायल हुआ क्लैक्सेन की डोज का फुल ट्रीटमेंट डोज, अगेन उसका यू नीड टू जस्टिफाई, अगर आप उस डोज को दे रहे हो, आर वी एक्चुअली डूइंग एनी हार्म। मेडिकल जो लाइफ का प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल डू नो हार्म, ये किसी को नहीं भूलना चाहिए। कुछ भी मेडिकेशन मेरा मन करेगा मैं दे सकता हूं मरीज को, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास आना चाहिए एज ए क्लिनिशियंस, डू नो हार्म। तो उसमें क्या हुआ, जो ट्रायल बता रहे थे अनुरोध की, आईसीयू पेशेंट्स में एक्चुअली फुल डोज जो ट्रीटमेंट दिया गया उससे तो बहुत ब्लीडिंग हुई है, तो ब्लीडिंग की वजह से डेथ हो रही है। और एस्पिरिन का जो है ट्रायल चल रहा है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसका रोल है नहीं या नहीं, हमें पता नहीं है अभी आज की डेट में। व्हाट वी नो, इट इज नॉट रेकमेंडेड बिकॉज देयर इज नो एविडेंस। रिकवरी ट्रायल है जिसमें स्टेरॉइड भी उसने पकड़ा है, सबसे बड़ा ट्रायल, उसमें एस्पिरिन चल रही है ये काम में, उसका रिजल्ट नहीं आया हमें। एंड जब तक नहीं आता वी विल बी डूइंग द रॉन्ग थिंग, क्योंकि एस्पिरिन दे देंगे साथ में एंटीकोएगुलेंट दे देंगे, उस पेशेंट्स का ब्लीडिंग रिस्क को हमें पता नहीं है, कोई ये भी चेक नहीं करेगा कि डोज एडजस्ट हुई है उसकी किडनी फंक्शन के अकॉर्डिंग। किसी की पहले से किडनी में एबनॉर्मेलिटी है, आप उसको क्लैक्सेन हेपरिन भी दे रहे हो, उसको साथ में एस्पिरिन भी दे रहे हो, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग ए रेसिपी फॉर डिजास्टर। वो तो लक पे चलेगा अपने, हाँ ब्लीड हो भी सकता है जी, नहीं भी हो सकता, और क्रेडिट मिल जाएगा, हाँ डॉक्टर साहब ने दवाई दी है 2-3 उनसे ठीक हो गया। वो ऐसे नहीं, वो अपने लक पे बच गया है ब्लीडिंग से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड डू नो हार्म। थैंक यू वेरी मच मनीष। और मैं जो लोग लेट से ज्वाइन किए उनको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मनीष गौतम रेस्पिरेटरी फिजिशियन है, वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल लिवरपूल में, और इन्होंने कोविड के हजारों केसेस मैनेज किए हैं सक्सेसफुली। और डॉक्टर अनुरोध भवनानी क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट हैं, जो कि उन्होंने
बहुत सारे क्रिटिकल केयर कोविड के पेशेंट, बल्कि नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड में जितने क्रिटिकल केयर पेशेंट थे काफी इनके हॉस्पिटल में जा रहे थे, इन्होंने मैनेज किया सक्सेसफुली। तो दैट इज व्हाई वी थॉट दैट विल ब्रिंग दीज टू एक्सपर्ट्स टुगेदर, ताकि एक हम लोग का अंडरस्टैंडिंग बन सके कि व्हाट इज द राइट स्ट्रैटेजी। तो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस भी आने शुरू हो गए हैं। तो मैं पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा अनुरोध, इफ पेशेंट आइसोलेट हिमसेल्फ हरसेल्फ, इज इट नेसेसरी टू टेस्ट अगेन? ये पहला सवाल आया कि फिर से टेस्ट करने की जरूरत है क्या? एक बार हमने आइसोलेट कर लिया है और अगर पहला टेस्ट नेगेटिव आ गया है तो क्या 3-4 दिन के बाद फिर से हम लोग को टेस्ट करना चाहिए? नहीं, द एविडेंस जो गाइडलाइंस हैं, नेशनली एक्सेप्टेड गाइडलाइंस, कि यदि आप पॉजिटिव हैं, बाय व्हिच आई मीन आरटी-पीसीआर से पॉजिटिव है, दैट्स अ मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट। तो द गाइडलाइंस आर वेरी क्लियर, 10 to 14 डेज। इंग्लैंड में 10 डेज है, इंडिया में 14 डेज है, बट यस यू नीड टू आइसोलेट 10 to 14 डेज एंड प्रोवाइडेड यू गेट बेटर। कहने का मतलब सिम्टम्स आर बेटर, मतलब फीवर नहीं है, सर्दी जुकाम खांसी खत्म हो गई है, देन देयर इज नो नीड टू रीटेस्ट इट, बिकॉज इट डजंट मीन मच। से हर टेस्ट का रोल होता है, उसके रिजल्ट पे आप जाएंगे। यदि वो पॉजिटिव आया तो व्हाट डज दैट मीन? आर यू स्टिल कैरिंग? वेल, इट मे बी पॉजिटिव बट यू मे नॉट बी स्प्रेडिंग इट, बिकॉज आपका विरुलेंस बहुत कम हो गया है। एंड अगेन, इफ यू आर अनवेल और वो नेगेटिव आ गया है, तो रिमेंबर ये टेस्ट फॉल्सली नेगेटिव भी होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, टेस्ट पॉजिटिव है तो आइसोलेट करें। आइसोलेट करने का स्ट्रिक्ट आइसोलेशन चाहिए 10 to 14 डेज। आई नो हम लोग ये आइडियल कंडीशंस की बातें कर रहे हैं, लेकिन यस दैट्स अ राइट थिंग टू डू। 10 से 14 दिन आइसोलेट करें, सिम्टम्स खत्म हो गए, यू आर फाइन, देयर इज नो नीड टू टेस्ट इट, बिकॉज आई नो मेनी पीपल यहाँ पे जिन्होंने हु हैव बीन पॉजिटिव। ये हमने देखा था फर्स्ट वेव में, बहुत देखा था, टेस्ट कराते जा रहे थे, वो पॉजिटिव थे लेकिन दे वर फाइन एंड वो घर पे बैठे हुए थे। लेकिन वी नो नाउ इट्स नॉट द राइट वे टू डू इट। करेक्ट, तो थैंक यू अनुरोध। विल हैव टू जस्ट कीप गोइंग बिकॉज काफी सारे क्वेश्चंस अब आ रहे हैं लगातार। अनुरोध, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप ही के लिए है। शॉर्ट में बताएं कि प्लाज्मा से क्या फायदा होता है? प्लाज्मा क्या जादू का चीज है, जादू का ट्रीटमेंट है, या कुछ ऐसा लोग में एक पैनिक है, अगेन माहौल है इंडिया में कि भाई अगर आप आईसीयू में चले गए तो प्लाज्मा के बिना आपका उपचार नहीं हो सकता, प्लाज्मा के बिना आप ठीक नहीं हो सकते, रेमडेसिविर के बिना आप ठीक नहीं हो सकते। तो प्लाज्मा के बारे में कुछ जल्दी से बताएं हम लोग को। हाँ, प्लाज्मा देखिए, आइडिया इज कि एंटीबॉडीज, कि आप एंटीबॉडीज ले लें तो उससे आप बेटर हो जाएंगे। लेकिन big trials have been done which have shown that plasma therapy is ineffective. There is no benefit in outcome, mortality, morbidity से कोई improve नहीं होती है। तो प्लाज्मा लेने का कोई रोल नहीं है कोविड में। It is internationally accepted now. करेक्ट, थैंक यू वेरी मच। एक सवाल है आपके लिए शायद मनीष, माय सिस्टर वाज कोरोना पॉजिटिव 6 months बैक, डज शी स्टिल हैव एंटीबॉडीज, हाउ विल आई नो? ट्रिकी क्वेश्चन है। 6 months की हम हाइपोथेसिस पे ही काम कर रहे हैं, मेनली साइंटिस्ट की शायद एंटीबॉडी 6 महीने तक है सिस्टम में। तो इट इज पॉसिबल, वी कांट बी 100% श्योर, क्योंकि अगर 6 months के बाद पॉसिबल है, थियोरेटिकली यू कैन गेट, क्योंकि अब तक हमें ये आंसर क्लियरली पता नहीं लगा है कि कब तक हमारे अंदर एंटीबॉडी रहती है। एंड 6 months इज ए आर्बिट्रेरी कट ऑफ। So I will strongly suggest, अगर उनको सिम्टम दोबारा डेवलप होते हैं, if you have suspicion, get her tested. थैंक यू वेरी मच। केशव मिश्रा का सवाल है कि इनके 2 क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू सीटी स्कैन एंड डी डायमर। सीआरपी नॉर्मल रेंज क्या है तो डिटरमिन लो और हाई सेकेंडरी, सेम गोज फॉर डी डायमर, कि कैसे लोग बेसिकली सवाल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि डी डायमर सबका हो रहा है, सीआरपी सबका किया जा रहा है, तो ऐसा कोई आप बताएं एक कट ऑफ, एक गाइडलाइन, एक सिस्टम, ताकि लोग अवेयर हो के सके तक किस समय हम लोग को सीआरपी करना चाहिए, किस समय डी डायमर करना चाहिए। तो एक कुछ कम्युनिटी के लिए बताएं मनीष आप कि कब करना चाहिए सीआरपी और डी डायमर। सो ये बड़ा राजे अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड बड़ा फैशनेबल चीज है आज की डेट में। रिस्क जो टेस्ट से रिस्क प्रेडिक्शन करना, बड़े बड़े फ्लो चार्ट चल रहे हैं, टेबल्स चल रही हैं, सीआरपी के क्राइटेरिया है, सीटी स्कोर का क्राइटेरिया है, एलडीएच का क्राइटेरिया है, इंटरल्यूकिन का क्राइटेरिया है। आदमी उनको पढ़ के पागल हो जाएगा। यू हैव टू कम अप विद ए मॉडल की यूनिफाइड सिस्टम में अगर क्राइटेरियाज को सारा मिला के प्रेडिक्शन मॉडल बना है। एक था जब यहाँ पे यूके में 4C प्रेडिक्शन मॉडल का सजेशन था, पर अब तक कोई भी ऐसा वैलिडेटेड मॉडल नहीं है। और अनिरोध ने भी यही कहा है कि एक टेस्ट से, एक वैल्यू से कुछ नहीं हमें पता लगता है। और अब तक ऐसा प्रेडिक्शन मॉडल जिसमें सारे टेस्ट को आप इनपुट डाल के और प्रेडिक्ट करो कि ये
वर्स करने वाला है ये पेशेंट और ये पेशेंट बेटर होने वाला है, अब तक कोई वैलिडेटेड मॉडल नहीं आया. सो माय रिक्वेस्ट इज डोंट पुट टू मच फोकस ऑन सिंगल टेस्ट एंड देयर सीवियरिटी एंड वैल्यूज. What is most important is how is your patient, what symptoms they have, what's their oxygen level, and always remember, are they fitting into mild criteria, which means respiratory rate उनका normal चल रहा है, oxygen 94 से ज़्यादा चल रही है, mild fever, mild cough है, that's fine, I'm not worried about that. Are they in moderate criteria, उसमें respiratory rate बढ़ गया है, 24 से ज़्यादा हो गया है, saturation 93 है, से उससे कम हो गई है. दर्शक जो हमारे सुन रहे हैं तो उनको आप रेस्पिरेटरी रेट समझा दें कि कैसे वो समझेंगे. रेस्पिरेटरी रेट मतलब 1 मिनट पे कितनी बार आप सांस ले रहे हैं. 24 या 24 बार 1 मिनट में. सो अगर उससे ज्यादा चल रहा है तो आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, 24 बार से ज्यादा सांस ले रहा है आपका पेशेंट, तो मतलब आपका पेशेंट मॉडरेट की तरफ जा रहा है. मॉडरेट की तरफ जा रहा है, उसके ऑक्सीजन कम हो रहे हैं. तब जब आप टेस्ट करना स्टार्ट करते हो कि हाँ ये नॉर्मल रिकवरी नहीं हो रही है बॉडी की अपने साथ, हमें कुछ और देना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट स्टेप कुड बी स्टेरॉइड, पर उससे पहले चेक इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, थिंक ऑफ ए सीटी स्कैन. पर एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा मनीष की एंटीबायोटिक का टाइमिंग क्या होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि अभी शुरू में 3-4 दिन हम लोग सिर्फ पैरासीटामोल लें, एंटी एलर्जिक लें, एंटी हिस्टामिन लें, थोड़ा विटामिन लें, थोड़ा स्टीम लें, गार्गल करें, लेकिन एंटीबायोटिक कब शुरू करना चाहिए? सो राजे, मैं तो चेस्ट फिजिशियन हूँ. रेस्पिरेटरी कंसल्टेंट्स को सबसे पहला क्वेश्चन होता है उनका फ्लैम, स्पीटम. अगर फ्लैम का साइन है तो मेरे लिए तो एंटीबायोटिक का वो ऑलमोस्ट टाइम आ गया है. फिट एंड वेल पेशेंट अगर हल्का सा फ्लैम करने लगा है, सो आई हैव दैट थ्रेशोल्ड. बट अगेन वी डोंट हैव एनी एविडेंस कहीं भी किसी भी ट्रायल में कि आपको इस स्टेज पे एंटीबायोटिक देनी है, इस स्टेज पे नहीं देनी. यस, व्हेन योर इन्फेक्शन मार्कर्स आर हाई, आपके चेस्ट एक्स-रे सीटी स्कैन पे चेंजेस हैं, then you're very likely to give antibiotics and it will be the right thing to do. Compared to day 1 पे पेशेंट या ना उसको खांसी है, हल्की सी खांसी हुई है, बिल्कुल उसको ना बुखार है, उस पेशेंट को आप एंटीबायोटिक क्यों देंगे? You are actually trying to do harm to that patient. करेक्ट. जैसा मनीष ने बताया, जैसा अनुरोध ने बताया, जैसा हम लोग का एक्सपीरियंस रहा इंग्लैंड में, सबसे जरूरी है टाइमिंग. एंटीबायोटिक का टाइमिंग जब लगे कि कुछ इन्फेक्शन का रिस्क है, अगर आपका सीआरपी ब्लड में ज्यादा आ रहा है, फीवर परसिस्टेंट रह रहा है, कफ बढ़ रहा है, बलगम आ रहा है, दैट इज द टाइम टू स्टार्ट द एंटीबायोटिक. जैसा अनुरोध ने बताया कि स्टेरॉइड का टाइमिंग जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड सही समय पे नहीं लेंगे तो वो ज्यादा हार्म करता है. मोस्ट ऑफ द स्टडीज हैव शोन कि अगर आप स्टेरॉइड जल्दी ले लेते हैं तो वो आपको ज्यादा हार्म करता है. तो इसलिए जरूरी है कि जैसा भारत सरकार ने भी अपना एक गाइडलाइंस बनाया है कि 93% के नीचे ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, अगर आपका खांसी लगातार रह रहा है, फीवर रह रहा है, तो सैचुरेशन हैज टू ड्रॉप बिलो 93, 94. दैट इज द टाइम कि स्टेरॉइड सोचने की जरूरत है. अपने डॉक्टर से बात करें और स्टेरॉइड ले. नेक्स्ट क्वेश्चन है, my mother recently got contracted with COVID and is negative for now 15 days. She got COVID positive just post her first dose of Covishield vaccine. Should we go for the second dose in another 4 weeks time, and what are the risks? So this is basically maybe Manish, if you want to answer. 15 days पहले इनका negative था और she got positive and then she had the first dose. तो फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में बेसिकली इनका पॉजिटिव आ गया है सिम्टम्स. ऑफ शुड वी गो फॉर द सेकंड डोज ऑफ द वैक्सीन और शुड वी वेट? आई थिंक द गाइडलाइंस आर दैट वी हैव टू वेट. वंस यू कैन बिकम कोविड पॉजिटिव, देन यू हैव टू वेट फॉर 3 months to get your second dose or complete your dose. So yes, if you are COVID negative and from the time of your symptoms onset, 28 days is fine. You can have a vaccine even if you are positive after 28 days. We have to be 28 days gap at least. It's not going to do any harm to you. You may have extra level of antibodies, but हमें वो पता नहीं है उसका कुछ extra फायदा होगा या नहीं. So better have wait a bit longer, क्योंकि आपकी natural antibody है system में. So wait a bit longer. So किसी ने पहले पूछा था कि 6 months का time period है, तो अगर आपको actually studies ने show किया है positive COVID infection और first dose of vaccine, उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट है एंटीबॉडी की ड्यूरेशन में. तो बेस्ट है अपनी वेट कीजिए आपका अगर पॉजिटिव है, और उसके बाद आप लगवाएं वैक्सीन, ताकि आपकी एंटीबॉडी प्रेजेंस जो है बॉडी में लॉन्गेस्ट टाइम तक रहे. नॉर्मली 6 months मान के चल रहे हैं हम लोग, बट आपको इन्फेक्शन के बाद फर्स्ट डोज लगवा रहे हैं तो इट्स वेरी लाइकली विल हैव लॉन्गर देन 6 months. Anurodh, is it necessary to undergo a COVID test? I got fever and cold and I have been isolated at home for 14 days. Now I don't have any fever, only mild cough. Oxygen saturation is above 97%. Should I be doing my COVID testing? क्या रोल है COVID test कराने का भी?
देखिए, इन आइडियल कंडीशन तो यस, यदि फीवर आज के ज़माने में फीवर अनलेस प्रूव्ड इज़ कोविड, तो यस, शुरू में करा लेना चाहिए था। लेकिन द गुड पार्ट इज़, लेट्स टेक द वर्स्ट केस सिनेरियो। आप शुरू में टेस्ट कराते, पॉजिटिव होता एंड उसके बाद क्या एडवाइस होती? आप आइसोलेट करें, व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन। So the answer to this is there is no need to do it if you're fine, if your symptoms have gone, you have done the isolation religiously for 14 days, कुछ कराने की जरूरत नहीं है. You're fine. Thank you very much, Arno. Thanks. The next question, I've had both my vaccines. Should I be worried of getting COVID again after my second dose of vaccine? मैं Of इसका course. शुरू में इसका जवाब दे दूं कि अगर आप इंडिया में हैं तो obviously we know that UK strain started that in a bad way in UK in India, लेकिन अब वहां पे बोला जा रहा है सर डबल म्यूटेशन है, ट्रिपल म्यूटेशन है, नया स्ट्रेन है, तो अभी भी हम लोग के जीनोमिक्स जो है इंडिया में वो पूरी तरह से उतना मजबूत नहीं है कि हमको जानकारी हो कि ये सेकंड म्यूटेशन, डबल म्यूटेशन, ट्रिपल म्यूटेशन किस तरह का म्यूटेशन कहां पर कितना इन्फेक्शन कर रहा है। तो ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में हैं, सेकंड डोज वैक्सीन ले चुके हैं, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद आपके एंटीबॉडीज लेवल काफी अच्छे हो जाते हैं, होपफुली आपको इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे केस रिपोर्ट हो रहे हैं, खास करके इंडिया में सेकंड वेव में, जो कि लोग अपना वैक्सीन ले चुके हैं, दोनों वैक्सीन, उसके बावजूद लोगों को इन्फेक्शन पकड़ रहा है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है। बल्कि हमारे काफी सारे डॉक्टर दोस्त हैं जिनको वैक्सीन लग चुका था, आपको भी शायद, आपके भी कुछ दोस्त हो शायद, मनीष और अनुरोध, जिनको डॉक्टर्स हैं जिनको लग चुका है डोज वैक्सीन का दोनों, उसके बावजूद भी लोगों को कोविड हो रही है। तो ऑब्वियसली कोविड इन्फेक्शन तो जरूर होगा, लेकिन ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपके शरीर में एंटीबॉडीज है, तो शायद खराब कोविड नहीं हो, आप ज्यादा प्रोग्रेस करके ज्यादा सीरियस नहीं होंगे शायद। मनीष, यही अंडरस्टैंडिंग है हमारी। नहीं, बिल्कुल राजे, ये भी बड़ा स्ट्रेंजली काफ़ी केसेस इंडिया में आ रहे हैं सेकंड वैक्सीन की डोज के बाद। 28 डेज पहले सेकंड वैक्सीन लगी थी, इवन दोज पीपल आर गेटिंग इन्फेक्शंस, बट यू आर राइट, यू आर लेस लाइकली टू डेवलप सीवियर डिजीज क्योंकि आपके एंटीबॉडी लेवल अच्छे हैं। तो पॉसिबली ये म्यूटेंट स्ट्रेन उन एंटीबॉडीज को पेनिट्रेट कर पाया, इसलिए इन्फेक्शन हो रहे हैं। इसीलिए इन पेशेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वैक्सीन भी लग चुकी है, डोंट फॉरगेट योर बेसिक प्रिकॉशंस। सो मास्क है, हैंड सैनिटाइजर, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम कोविड पेशेंट्स एज मच एज पॉसिबल, यू कैन स्टिल गेट इन्फेक्शन। करेक्ट। Anurodh, next सवाल, sir, do we need to do a COVID test if our symptoms is there for 2 to 3 days? So basically ये clarify करना जरूरी होगा अनुरोध कि what is the right time to do the RT-PCR test हो चाहे एंटीजन टेस्ट हो। मैं तो सजेस्ट करता हूँ कि एटलीस्ट 3 to 4 डे के बाद Correct. करना चाहिए, 3rd to 4th डे के बाद करना चाहिए, पहले फर्स्ट सेकंड डे में करने का जो कि नेगेटिव हो सकता है, जैसा आप भी जानते हैं मनीष। 3 to 5 days, yes, that's the correct answer. 3 to 5 days of onset of symptoms, उसके बाद peak वायरल लोड रहेगा बॉडी का, बिकॉज दैट्स व्हाट यू वांट। बिकॉज रिमेंबर, हर टेस्ट की सेंसिटिविटी, इनका नेगेटिव फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं। Yes, यू वांट टू कैच इट एट द राइट टाइम, 3 to 5 days. करेक्ट, थैंक यू मनीष। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग के समय क्या कोविड का वैक्सीन ले सकते हैं? जहां तक हमारी जानकारी है तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग में, एंड प्रेग्नेंट वुमेन में भी एज वेल, दे आर आल्सो सपोज्ड टू नाउ टेक, नया गाइडलाइंस जो हमारा आया है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप कर रहे हैं या अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो दोनों सिचुएशन में शायद वैक्सीन में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अब तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया कि वैक्सीन लेने से कोई प्रॉब्लम है। और ऑब्स्ट्रेटिक सोसाइटीज़ मोस्टली कंट्रीज़ में जहाँ डिजीज़ हो चुका है सपोर्टिव हैं इस बात की। तो यू शुड हैव वैक्सीन व्हेन यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट। थैंक्स। कैन अ पर्सन हैविंग थैलेसीमिया बी माइनर गो फॉर कोविड वैक्सीन? तो हाँ अनुरोध, आप बताना चाहेंगे इस पर? Let me answer this. I've got thalassemia minor. Okay. Yes, you can go for it. You are safe. You are a trait carrier. It doesn't affect you. Please go ahead. थैंक यू वेरी मच अनुरोध, दैट्स वेरी रियश्योरिंग एक्चुअली। आपने बहुत ही रियश्योर कर दिया हमारे जो दर्शक जिन्होंने सवाल पूछा। एक क्वेश्चन कैन आई जस्ट राजे, आई थिंक इंडिया में थैलेसीमिया इतना अंडर डायग्नोज्ड है, बहुत कॉमन है, तो आई थिंक डेफिनेटली दिस शुड नॉट बी द रीजन नॉट टू हैव द वैक्सीन। I think one thing, as you know, and we all know, that one of the things that India can do in future is to strengthen their database. हमारे पास किसी भी डिजीज का किसी तरह का कोई डेटाबेस नहीं है कंट्री में। इंडिया इज वन ऑफ द ओनली कंट्री जहां डेटाबेस की इतनी कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है कि अगर डायबिटीज का प्रेवलेंस क्या है, कोलेस्ट्रॉल का प्रेवलेंस क्या है। हमारे एनएचएस में इंग्लैंड में हर चीज का एक सिस्टम है उसको रखने का, उसको प्रिजर्व करने का, उसको ठीक से रिकॉर्ड मेंटेन करने का, एंड दैट इज समथिंग आई थिंक वी ऑल हैव टू लर्न, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड लुक इनटू दैट सीरियसली। एक सजेशन आया मिस्टर सिन्हा का कि why not make 3 different packages of
mild, moderate, and severe symptoms from the chemist, where the chemist will supply. If you've got mild symptom, you take this pack. If you have moderate, you take this pack. You've got severe, you take this pack. बट जहां तक हमारी अंडरस्टैंडिंग, जहां तक हमारी बात हो रही थी कि माइल्ड और मॉडरेट में ये समझना जरूरी है, क्योंकि माइल्ड हुआ कि हमारा सब चीज स्टेबल है, ऑक्सीजन स्टेबल है, फीवर स्टेबल है, कफ स्टेबल है, हम पैरासीटामोल से काम चला रहे हैं, दैट इज माइल्ड. मॉडरेट में हुआ कि हमारा सैचुरेशन थोड़ा कम की तरफ जा रहा है, फीवर थोड़ा सा बढ़ रहा है, खांसी थोड़ी बढ़ रही है. तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी क्लिनिकली असेस्ड इन द सेंस दैट आप अपने लोकल डॉक्टर से बात करें, एंटीबायोटिक्स शुरू करें. सैचुरेशन अगर आपका 94 से नीचे जा रहा है तो स्टेरॉइड शुरू करना होगा. तो इट विल बी वेरी चैलेंजिंग. हमारे हिसाब से वो ऐसा पैक बनाना शायद डिफिकल्ट होगा, जबकि एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, एवरी सर्कमस्टांसेस इज डिफरेंट, एवरी केस इज डिफरेंट. तो वी कैन नॉट हैव अ फिक्स प्रोटोकॉल कि माइल्ड में ये दे दें, मॉडरेट में ये दे दें और सीवियर में ये दे दें. आप लोगों का क्या कहना है इस पर? Absolutely, it's very difficult कि every patient is different, हर का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है. लेकिन yes, it's a guideline, mild, moderate, severe, and इसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं. तो yes, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. और ये राजे, ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, हर क्लिनिशियन को अवेलेबल है. एम्स रेगुलरली अपडेट करता है, गवर्नमेंट अपडेट करती है गाइडलाइंस. एवरी व्हाट्सएप ग्रुप विल हैव दैट गाइडलाइन सर्कुलेटेड. तो अभी हो क्या गया है, ये उस तरह की सिचुएशन लगती है मेरे को. आपको काम पे पहुंचना है 9 बजे, वेट कर रहे हैं कार में सब रेडी होके और आप चाबी नहीं मिल रही है. पैनिक आ गया है वहां पे, और पता लगता है चाबी आपकी जेब में है. तो ये सब है, एग्जिस्ट कर रही है. पीपल जस्ट गो बैक. फर्स्ट वेव में ब्यूटीफुली मैनेज किया है लोगों ने. माइल्ड डिजीज तो अपने आप बेटर हो जाएगा. तो ये सिचुएशन है. जस्ट हैव पेशेंस, go to these basic 3 criterias, and most of the people are recovering and will continue to recover. Let's not confuse things. करेक्ट. मैं क्वेश्चन साथ में लेता रहूंगा, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि अगर हम लोग एक सिनेरियो रन करें ताकि लोग, जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, वो समझ जाएं कि जो भी बात हमने अभी तक कही है कि अगर माइल्ड सिम्टम है, सिर्फ हल्की सर्दी, हल्की बुखार, हल्की खांसी है, तो ये नॉर्मल वायरस की तरह आके चला जाएगा. मैक्सिमम लोगों में, 75-80% लोगों में, कुछ 15-20% लोग होंगे जिनको एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड की थोड़ी जरूरत पड़ेगी, और उनमें कुछ लोग हैं जिनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी. 95% will be normal. It's only 1 in 25%. कुछ नंबर्स अभी शायद ज्यादा बढ़ रहे हैं. जैसे इंडिया का जो स्ट्रेन है, इंडिया में जो स्ट्रेन है, लोग थोड़ा ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, थोड़ा ऑक्सीजन सैचुरेशन जल्दी डिप कर रहा है. लेकिन आपका अपना जैसे कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स नॉर्मल वायरस की तरह, नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह आएगा और ये चला जाएगा. इसलिए घबराने की बात नहीं, पैनिक नहीं करें. पैनिक तब करें या घबराने की जरूरत तब है जबकि ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका थोड़ा सा कम की तरफ, जैसा अनुरोध ने बताया, जैसे मनीष ने बताया, कि अगर कम की तरफ जा रहा है थोड़ा, अगर 95-96 नॉर्मल रहता है और 92, 93, 91 आ रहा है, तो यस, डॉक्टर से बात करें, स्टेरॉइड शुरू करें, एंटीबायोटिक शुरू करें. लेकिन हड़बड़ा के शुरू से आइवरमेक्टिन, फैबी फ्लू, ये सब दवाइयों की कोई आज तक कहीं एविडेंस नहीं साबित हुई है. मैं ये भी अभी बताना चाहूंगा कि जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिसिन में 3 दिन पहले एक और बहुत बड़ा रिसर्च पब्लिश हुआ है, जो कि वन ऑफ द वर्ल्ड का बिगेस्ट रिसर्च ऑन आइवरमेक्टिन, कि आइवरमेक्टिन 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को दिया गया था. जिनको दिया गया और जिनको नहीं दिया गया, उनमें बराबर ही रहा क्लिनिकल आउटकम, बल्कि जिनको दिया गया उनमें साइड इफेक्ट्स देखा गया, उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप हो गए, कुछ लोग को ब्लीडिंग हुआ. तो डू नॉट टेक आइवरमेक्टिन, डू नॉट टेक फैबीफ्लू टिल यू आर एडवाइज्ड बाय अ वेरी स्पेशल सीनियर पर्सन जिनका इस पे एक्सपर्टीज हो. लेकिन मैं जहां तक बताना चाहूंगा कि अभी तक रिसर्च ने बताया है आइवरमेक्टिन, फैबीफ्लू का कोई रोल नहीं है. एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, जो भी एंटीबायोटिक आपके लोकल डॉक्टर्स बताते हैं, तो आप जरूर शुरू करें, लेकिन उसका भी एक टाइमिंग होना चाहिए. मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि स्टेरॉइड का समय, जो टाइमिंग होता है, वो बहुत जरूरी होता है. 93, 94, 92 ऐसा सैचुरेशन आपका अगर डिप कर रहा है, खांसी बढ़ रही है, दैट इज द टाइम, खास करके डे 5, डे 7, जब आपका साइटोकाइन सर्ज होता है, इंटरल्यूकिन सर्ज होता है, इन्फेक्शन जब पीक पे पहुंचता है, देन यू अटैक द वायरस विद स्टेरॉइड्स. I think that's the main important message, isn't it, Manish? Yes, Rajay, and I think एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हमें थोड़ा सा, we should be feeling that we have blessed with good research in last 12 months. जब कोविड आया इंग्लैंड के अंदर मार्च में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में, अभी तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की बात कर रहे हैं, हमें पता है मॉडरेट में क्या करना है, कि स्टेरॉइड काम करते हैं और लाइफ सेविंग है. उस टाइम हमारे पास वो भी नहीं थे, उस टाइम कुछ भी नहीं था. तो आज की डेट में इंडिया में यस केसेस बढ़ रहे हैं, बट हमारे पास एक तो ट्रीटमेंट तो है, एंड एक्चुअली दे आर लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट.
सो अपने को बस बिल्कुल बेसिक्स पे जाके उन चीज़ों को फॉलो करना है यार। एविडेंस किस चीज़ का है मैं वो दूंगा, नहीं तो मैं बॉडी को वेट कर रहा हूँ मैं हील करने की। एंड दिस इज व्हाट वी ऑल नीड टू स्टिक टू। मैं बहुत देख रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन जो इंडिया से लोग व्हाट्सएप कर रहे हैं कि लोग को एजिथ्रोमाइसिन, ऑगमेंटिन, डॉक्सीसाइक्लिन, कुछ लोगों को घर पे केफ्ट्रैक्सोन तक शुरू कर दिया गया घर में कि भाई आईवी केफ्ट्रैक्सोन शुरू कर दो क्योंकि तुमको पहले चेस्ट इन्फेक्शन होता है। ये दीज आर ऑल रॉन्ग स्ट्रैटेजी। हम लोग जो बात करें सिर्फ एविडेंस बेस्ड बात करें, जो कि रिसर्च बेस्ड बात करें, जो कि साबित हो चुका है सेकेंड वेव में कि हम लोग ने सक्सेसफुली काफी लोगों की जान बचाई है सेकेंड वेव में इंग्लैंड में। अनुरोध, नेक्स्ट सवाल है कि नेबुलाइजर एट होम क्या सजेस्ट करना चाहिए सबको? कोविड हो रहा तो नेबुलाइजर रखना घर में शुरू कर दें इमरजेंसी के लिए, क्या उससे फर्क पड़ता है? वेल इट्स लाइक एनी अदर थिंग, यदि आप पहले से नेबुलाइजर लेते हैं फॉर अस्थमा या सीओपीडी, यस यू शुड कंटिन्यू, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि नेबुलाइजर लेने से आपको कोई हेल्प होगा। लेकिन यस, इफ यू हैव यूज्ड इट एंड यू फाइंड इट हेल्पफुल, देन देयर इज नो हार्म इन टेकिंग। दैट वुड बी माय टेक ऑन इट। एब्सोल्युटली एक चीज बोलना चाहूंगा मैं डॉक्टर राजे, एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस, एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट प्रोन वेंटिलेशन, करेक्ट, कॉन्शियस करेक्ट, प्रोन एब्सोल्युटली वेंटिलेशन। यस। जस्ट ये बहुत ही ज्यादा मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है। डॉक्टर यस, अरविंद जो डांटा के हेड हैं रेस्पिरेटरी के, उन्होंने भी कल कुछ एक सेशन लिया था इंडिया में। तो मैं जानना चाहूंगा अनुरोध, प्रोन पोजीशन में खास करके कि उस पर काफी चर्चा हो रहा है इंडिया में कि प्रोन पोजीशन से ऑक्सीजन सैचुरेशन इंप्रूव करने के लिए टाइमिंग क्या है प्रोन पोजीशन का? किन लोगों को प्रोन पोजीशन करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितना करना चाहिए? देखिए प्रोन पोजीशन कुछ नहीं है, केवल उल्टा होके लेटना है, पेट के बल लेटना है। नाउ ये और कुछ नहीं, एक एक्सरसाइज है, योगा है। तो ये तो आप कभी भी कर सकते हैं। और इसकी फिजियोलॉजी ये है, इससे इंप्रूव इसलिए होता है क्योंकि सीधे लेटने पे वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो है ये ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ब्लड सप्लाई बेटर है नीचे, लेकिन ऑक्सीजन ऊपर बेटर जा रहा है। तो उसके चलते ऑक्सीजन लेवल्स नीचे चले जाते हैं, ये नोन है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए जब आप उल्टा लेटते हैं, पेट के बल लेटते हैं, तो ब्लड सप्लाई भी बेटर हो जाती है नीचे, लंग में नीचे, और वहाँ पे वेंटिलेशन भी बेटर हो रहा है। तो इट इम्प्रूव्स द ऑक्सीजन लेवल्स। रिगार्डिंग टाइमिंग, as and when you feel like it, लेकिन very important to do it when you have got moderate disease। कहने का मतलब when the again saturation जब नीचे गिर रहे हैं, when you're needing oxygen therapy, it's a simple thing which will improve, there is evidence for this, it will improve ventilation perfusion ratio, it will improve your oxygen levels बढ़ जाएंगे, इससे secretions भी clear होती हैं, and आपकी immunity in fact better होगी। So it is a right thing to do। तो आप बताना चाहेंगे कि अगेन अगर हमारा सैचुरेशन 95, 96, 97 रह रहा है तो जरूरत नहीं है प्रोन पोजीशन का, लेकिन अगर थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है, आपका कहना है, Definitely, that's अगर the right time to start ट्रेंड, doing it। Yes। आपका जैसे आपका हमेशा आप ट्रेंड के बारे में बता रहे हैं, ट्रेंड अगर डाउनवर्ड की तरफ है तो प्रोन पोजीशन करके आप लेट जाएं, उलट के अपने आप को लेट जाएं। अगर कोई फोटो अगर आप दिखाना चाहें अनुरोध, अगर आप Let me try. Let me try. Yes. Let me share screen. Can I स्क्रीन can हम I लोग share दिखा दें screen? दर्शक को तो बड़ा अच्छा होगा। Yeah. Can you see this all? ये आ रहा है? आ रहा, फैंटास्टिक, बहुत Yes. अच्छा आ रहा है। Okay. Good. So just एक टॉप पिक्चर पे देखेंगे पहले। ये होता है सुपाइन पोजीशन, जब आप बैक पे हैं अपने, तो देखिए होता क्या है कि जो लंग्स का नीचे वाला पार्ट है वहां पे बेटर ब्लड सप्लाई है, लेकिन ऑक्सीजन जो है जो इन्फ्लेशन है वो बेटर ऊपर की तरफ हो रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, मतलब हवा ऊपर ज्यादा जा रही है लेकिन ब्लड सप्लाई नीचे ज्यादा है। अब देखिए नीचे वाले डायग्राम में कैसे हेल्प होता है, जब आप प्रोन, जब आप मुंह के बल पेट के बल लेट रहे हैं, तो ब्लड सप्लाई इज ऑल्सो बेटर नीचे, एंड ऊपर क्योंकि वेट कम है लंग्स के ऊपर, तो वहां पे वो बढ़ गया है, एल्वियोलाई वो बड़े हो गए, एंड दिस मिसमैच जो है ये बेटर हो जाता है। आई शो यू अनदर पिक्चर, इसको करना कैसे है। आई जस्ट गो डाउन एंड होपफुली यू नो आई हैव गॉट द परमिशन टू शेयर ऑल दिस बिकॉज़ इट्स द राइट थिंग टू डू। पूरी गाइडलाइंस है इसकी, एंड दिस इज एन इजी थिंग टू डू। कैन यू सी दिस पिक्चर? फैंटास्टिक, वी कैन सी इट। या तो इसमें बस पेट के बल लेट जाना है एंड लंबी लंबी सांस लेके अंदर करके इसको रोकना है 5 सेकंड्स, एंड दैट हेल्प्स व्हाट इज कॉल्ड एज पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। ये तो ये जो वीडियोस हैं, ये पोजीशन है पिक्चर्स अनुरोध, हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, ये कितने बार हमको करना चाहिए? मान लीजिए अगर हमारा कुछ थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है ऑक्सीजनेशन का, ऑक्सीजनेशन थोड़ा मेरा घट रहा है, घर में मेरे सिलेंडर नहीं है, घर में मेरे कंसंट्रेटर नहीं है, नेबुलाइजर नहीं है, और अगर हमारा सैचुरेशन थोड़ा घट रहा है, तो एक तकिया आपने जैसा पिक्चर में दिखाया कि एक सर के पास है, हम्म, दूसरा आपके चेस्ट और पेट के बीच में कहीं बीच में रखा है, है। तो सेकंड तकिया यस, आपका। हाँ, ताकि प्रेशर कम पड़े पेट में, करेक्ट, वरना इससे करेक्ट। एज लॉन्ग एज टॉलरेटेड। द सिंपल आंसर इज जितनी देर कर सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन यस, 1-2 घंटे बाद पोजीशन थोड़ी चेंज करें, एक साइड पे लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड, एंड देन ऑब्वियसली यू विल नीड अ ब्रेक, थोड़ा कुछ खा लें उसके बाद फिर, लेकिन यस इट विल हेल्प।
और 24 घंटे में अगर हम लोग ऐसा 3-4 बार करें, 2-3 घंटे के लिए हर बार, तो आपको लगता है कि उससे कुछ फ़र्क पड़ता है? इवन मोर 2-3 घंटे इस पे, फिर ब्रेक लें, फिर 2-3 घंटे करें। इन वार्ड जब पेशेंट एडमिट हो जाते हैं ऑक्सीजन पे, तो वी वर टेलिंग देम अप टू 16 आवर्स। इनफैक्ट इंट्यूबेटेड पेशेंट, जब पेशेंट में ट्यूब लग जाती है ऑन द वेंटिलेटर, तो द सेफ गाइडलाइन इज टू डू इट फॉर 16 आवर्स, 16 घंटे के लिए। 8 घंटे फिर बैक पे करना होगा, वरना प्रेशर सोर वगैरह हो जाते हैं। तो यस, एज लॉन्ग एज टॉलरेटेड। थैंक यू सो मच अनुरोध। एक सवाल मैं इस पे यहाँ पे तुरंत पूछना चाहूँगा, चूँकि कुछ लोग अपना सीटी स्कैन तभी करा रहे हैं, काफ़ी सीटी स्कैन का एक चल रहा है माहौल इंडिया में कि लोग सबको सीटी स्कैन कर रहे हैं, जहाँ भी बुखार ज़्यादा रह रहा है, खाँसी ज़्यादा रह रही है, सीआरपी इन्फेक्शन मार्कर्स बढ़ गए हैं, आपके कुछ लोग डिनाइमर करा के बढ़ गया है। तो एक नंबर जो है, जो डिस्कशन में रहा हमेशा कि भाई सीटी स्कोर आपका अगर 10 से कम है तो माइल्ड है, 10 से 15 है तो मॉडरेट है, 15 से ऊपर अगर चला गया है तो थोड़ा सीवियर है निमोनिया, तो यू शुड सीक हेल्प अर्ली। तो कुछ गाइडलाइंस आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों की, व्हाट आर यू फॉलोइंग, व्हाट इज द गाइडलाइन हियर? Shall I take this, Rajay? Oh, yeah. श्योर। So I think it's like with any other guidelines. It's good, the scoring is good, but if the whole country is sticking to the scoring. करेक्ट। But if not only whole country, if you the city you live in, अगर सारे clinicians, सारे radiologists सब उसको stick कर रहे हैं उससे और management उसके according हो रही है, it will work. But that's not the case unfortunately. उसको CT score है 0 या 2, patient admit है रेमडेसिविर पे hospital में. How is that going to be helpful? So, and because of this reason, I think I would say don't give too much importance to that scoring. Important thing is patient के symptoms, oxygen level, हमने अभी डिस्कस किया है, पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट और पेशेंट के सिम्टम और आइडेंटिफिकेशन, कब उस पेशेंट को स्टेरॉइड देना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. मैं काफ़ी केसेस में देखता हूँ सीटी स्कैन हो चुका है और उससे पहले ही स्टेरॉइड स्टार्ट कर दिए हैं, तो एक्चुअली स्कैन मैनेजमेंट चेंज नहीं करता है मोस्टली केसेस में. और आइडियल वर्ल्ड में आई कंप्लीटली एग्री, सारा स्कोरिंग सिस्टम वुड हैव वर्क ब्यूटीफुली, और वही होता है ना, उस ब्यूटीफुल को यूनिफाइड करना पड़ता है सिस्टम को. करेक्ट। एक हमारे दर्शक है, उन्होंने अपना केस ही रख दिया है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी पर्पसेस, लेकिन उनको 8 दिन से लूज मोशंस है, उनके बॉडी एक हो रहे थे, थोड़ा फीवर था, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनका 94-95% था, उन्होंने बताया नहीं कि नॉर्मल क्या उनका, लेकिन 95 के आसपास ऑक्सीजन, जो कि रीजनेबल है हमारे हिसाब से. उनका टेस्ट पॉजिटिव आया, लूज मोशंस, फीवर, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95%. डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उन्हें एजिथ्रोमाइसिन दिया, इवरमेक्टिन दिया, लिवोसिट्रिजिन दिया, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड जो कि म्यूकोलिटिक एजेंट है, जो हम जानते हैं कि कफ निकालने का, सिक्रेशन निकालने का एक एजेंट होता है, वो दिया, एसिटोमिनोफेन दिया, जिंकोनिया दिया, बिकोसूल दिया. तो उनका पूछना था कि अब लूज मोशन हो रहा है, तो इतनी दवा जो डॉक्टर ने दिया है कि इस पे आपका क्या कहना है? लूज मोशन इतनी दवाओं से ही हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है. सैचुरेशन नॉर्मल है, कोई फीवर नहीं है. आई थिंक अगेन हम बार बार यही बात रिपीट कर रहे हैं. आपको घर में रेस्ट करना है, अपनी डेफिनेटली प्लेंटी ऑफ हाइड्रेशन, फ्लूइड इनटेक मैक्सिमम रखें, बेड रेस्ट ऐसे करें कि आप हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं. इस तरह से बॉडी को टाइम दे रिकवर करने के लिए. आपकी सैचुरेशन बिल्कुल बढ़िया है, इतनी सारी मेडिकेशन आप ले रहे हैं, उसकी वजह से मोस्ट लाइकली आपको लूज मोशन हो रहे हैं, तो उनको बंद कर दीजिए. पैरासीटामोल लगातार लें अगर आपको फीवर है या पेन है, अदरवाइज यू डोंट नीड टू टेक एनीथिंग. क्योंकि आप समझे कि जिंकोनिया भी लेने में और एजिथ्रोमाइसिन लेने में, आइवरमेक्टिन लेने में सबसे लूज मोशन हो सकता है, सबसे तबीयत और ज्यादा खराब हो सकती है, आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं, आप जल्दी हॉस्पिटल चले जाएंगे अगर आप इतना सारे दवा लेते हैं. तो ऑब्वियसली एंटीबायोटिक तभी लें जब सैचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, फीवर बहुत ज्यादा हाई रह रहा है और कफ बलगम काफी आ रही है, तभी एजिथ्रोमाइसिन लें. आइवरमेक्टिन का कोई रोल नहीं है. एंटीवायरल फैबीफ्लू, अगेन अभी तक कोई ऐसा स्टडी नहीं आया. अमित, मनीष, 2-3 सवाल हैं फैबीफ्लू पे, कि फैबीफ्लू पे आप बता दें एक लाइन की, फैबीफ्लू पे शायद अभी तक कोई ऐसा एविडेंस इंपॉर्टेंट नहीं आया कि फैबीफ्लू लेने से कोविड ठीक हो जाता है. कोई एविडेंस नहीं है अब तक. हमारे पास छोटी छोटी स्टडीज हैं, और आपको रियलाइज करना चाहिए पूरे वर्ल्ड का डिजीज है, हम छोटी छोटी स्टडीज पे नहीं रिलाई कर सकते हैं. तो जब तक कोई बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रायल प्रूव करे ये वर्क करती है, तो हमें यही मानकर चलना होगा इसका कोई एविडेंस नहीं है. करेक्ट. और एक और क्वेश्चन है कि ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, काफी जगह से लोगों ने भेजा है, हमारे फेसबुक पेज पर भी आ रहा है, चैट्स पे भी आ रहा है, क्वेश्चन आंसर में भी आ रहा है कि फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में उनको कोविड हो गया, उनके पेरेंट्स हैं, उनको उन्होंने लिया है वैक्सीन और उनके एक पेरेंट को हो गया कोविड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज,
तो क्या हमको कुछ दिन रुक के 28 दिन रुक के, या जैसा बता रहे थे पहले कि कुछ रुक के तब लेना चाहिए हमको अपना सेकंड डोज? यस, सॉरी, इसमें एविडेंस इज कि जो उसका है कि गैप हेल्प्स गिव यू द बेटर इम्यूनिटी, एंड इसके बीच में यदि आपको हो गया तो प्रॉब्ली यू विल गेट एंटीबॉडीज उससे भी. तो यस, नोबडी नोज, द रियलिटी इज नोबडी नोज, बट यस, वेटिंग फॉर स्लाइटली लॉन्गर 4 to 6 weeks इज द राइट थिंग टू डू. हाँ। यस. एक और सवाल आया है कि जिंक इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट इज इट एसेंशियल फॉर अ नॉर्मल पर्सन? तो आंसर है कि भाई अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, अगर अपनी हरी सब्जियां ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, 5 पोर्शंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रोज खा रहे हैं, तो अलग से जिंक क्या मल्टीविटामिन की भी टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है अगर आप नॉर्मल अपना हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं. जिंक ऑब्वियसली कुछ स्टडीज हुए थे, जर्मनी में एक छोटा स्टडी हुआ था जहां पता चला था कि जिंक लेवल जिनका अच्छा है तो वो शायद उनको हॉस्पिटल स्टे, उनका आईसीयू स्टे, सब चीज थोड़ा कम जा रहा था. लेकिन ऐसे नॉर्मली जिंक अलग से किसी को भी लेने की जरूरत नहीं है. मनीष, मैं वाइंड अप करना चाहूंगा सेशन को. मे बी जस्ट कपल ऑफ इंपॉर्टेंट टेक होम पॉइंट जो आप अपना बताना चाहें बिफोर वी वाइंड अप. राजे, मैं यही कहना चाहूँगा सबसे कि डोंट लूज पेशेंस. इसमें पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ पेशेंस करें, क्योंकि वो एविडेंस जो है, एविडेंस है टाइमिंग के बेस पे. ज़्यादा ट्रीटमेंट, बहुत सारा ट्रीटमेंट अगर जल्दी दे रहे हैं आप, एक्चुअली पेशेंट्स को डैमेज कर रहे हैं. तो यू हैव टू रिमेन पेशेंट, लेट द बॉडी हील द डिजीज, and when there are early signs that you may end up in trouble, that is the time we use medicines जिनका evidence है, such as steroids आज की डेट में. बाकी सारी जो इतनी चीज़ें हो रही हैं वो सिर्फ पैनिक की स्टेट में की जा रही हैं. तो हमें ये सब ध्यान रखना पड़ेगा. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर डिजीज को अगर हम देख के उनको फॉलो करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन उससे ही ठीक होगी, और वही हमें पता है ट्रीटमेंट काम करता है, तो जस्ट स्टिक विद दैट प्लीज. चाबी जो कार की गुम नहीं है, हमारी जेब में है, वो जस्ट गो बैक एंड लुक एट बेसिक्स. करेक्ट. अनुरोध, लास्ट मैसेज फ्रॉम यू. या बेसिकली नथिंग मोर टू ऐड, लेकिन इतना ही बोलूंगा कि एक और चीज मैं जो देख रहा हूँ, यस, कि देखिए हॉस्पिटल एडमिशन उनको ही चाहिए एट द एंड ऑफ द डे जिनको ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए. ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं और ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पीपल आर गेटिंग एडमिटेड जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन. इसका कोई रोल नहीं है. आप घर पे रहें, यू विल बी फाइन. अपने आप को मॉनिटर करें. प्लीज लीव बेड्स फॉर सिक पीपल जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है. आई थिंक पैनिक ज्यादा है इन सब चीजों में, तो प्लीज स्टे एट होम. उससे प्रोटेक्शन होगी. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर को क्लासिफाई करें, एंड जब ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो दैट इज द टाइम यू नीड टू स्टे इन हॉस्पिटल. ओके, आप हमारी स्क्रीन देख सकते हैं मनीष? कैन यू सी माय स्क्रीन? यस राजे, वी कैन. या फ्लायर? यस, आई कैन सी इट. या तो मैं ये नंबर देना चाहूंगा जो दर्शक देख रहे हैं कि ये नंबर है जो कि फ्री एडवाइस है, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं इंग्लैंड के, जो कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन का. डेली बेसिस पे हमारे एक्सपर्ट्स, करीब 30 डॉक्टर्स का ये पैनल है, और डेली बेसिस पे एक एक्सपर्ट अवेलेबल है आपके हेल्प एडवाइस के लिए. तो ये व्हाट्सएप नंबर है. आप अपना कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको तकलीफ हो, हम लोग कोशिश करेंगे जैसे भी हो सके टेली कंसल्टेशन के थ्रू. हमारे पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं इंडिया में जहां से हम लोग आपके नियरेस्ट ऑक्सीजन सेंटर, नियरेस्ट बेड जहां खाली हॉस्पिटल में, नियरेस्ट कहीं जो दवाइयां अवेलेबल हैं उसके बारे में हम जानकारी इस नंबर से मिल सकता है. तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड वील डू आवर बेस्ट टू हेल्प यू. मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हार्ट को लेके काफी सारा डिस्कशन हो रहा है इंडिया में. लास्ट 24 घंटा में डॉक्टर त्रिहान एंड डॉक्टर अशोक सेठ हैव come up with lots of queries and answers and a discussion about heart and COVID. और लोग हड़बड़ा के एस्पिरिन ले रहे हैं, ब्लड थिनर ले रहे हैं. मैं बताना चाहूंगा कि जब तक आप एक्सट्रीमली हाई रिस्क नहीं है और आपके स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट ने आपको एस्पिरिन खाने को नहीं कहा है, प्लीज आप एस्पिरिन नहीं लें. प्लीज आप कोई भी एंटी कोएगुलेंट्स घर में जब आप रह रहे हैं, अपना इलाज कर रहे हैं, तो आप कभी नहीं लें. कोई ऐसा रिसर्च नहीं है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं जो कि कहता है कि आप ब्लड थिनर लें. ब्लड थिनर लेने से आप अपने आप को स्ट्रोक से बचा सकते हैं और अपने आप को आप हार्ट अटैक से बचा सकते हैं. कोई ऐसा नहीं हुआ है. और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 2-3 दिन के अंदर में जो इंडिया के कुछ टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं और यहाँ के जो कुछ टॉप हीमेटोलॉजिस्ट हैं उनको लेकर आएंगे, ताकि हम आपके और भी कुछ क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच. प्लीज फील फ्री. सुमन, प्लीज शेयर द number in the chat so that everybody can have the number of the WhatsApp number. और प्लीज आप फील फ्री करें. जो भी आपका क्वेरी है, जो भी आपके क्वेश्चन, हमारे एक्सपर्ट डेली बेसिस पे अवेलेबल हैं आपको हेल्प करने के लिए. and whatever we will try and we'll do and help you in whatever way possible. So thank you so much Manish for your time, and Anurodh, खास करके आपने अपने
ऑन कॉल के बीच से समय निकाल के हम लोग के साथ ज्वाइन किए, और मनीष आपने अपने छुट्टी के दिन हम लोग के साथ ज्वाइन किए, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड होप टू सी यू गाइस वेरी सून. थैंक यू वेरी मच. Pleasure. Thanks, Rajay. Thanks, everyone. Thank you. Bye bye.